रिफाम्पिसिन और रिफाम्पिन सेम ही है, एक ही नाम है उसका, रिफाम्पिसिन, सी आई कभी कभी नहीं रहता है। रिफाम्पिन और रिफाम्पिसिन बोथ आर सेम ड्रग। इट इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ रिफामाइसिन बी। ये रिफामाइसिन बी जो है एंटीबायोटिक, उसका डेरिवेटिव है। So it is a semi-synthetic derivative of, it is a semi-synthetic derivative of rifamycin B. It has a activity against the anti. It is an activity against the Mycobacterium tuberculosis and all the strains. So it is active against intracellular, extracellular, as well as macrophages or persisters. It has an activity against the Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium leprae. So that's why it is used in the both conditions, tuberculosis as well as leprosy. Leprosy may be used. It is also active against Staphylococcus and has a spectrum of activity like macrolides and lincomycin. Macrolides, lincomycin जैसे वैसे ही spectrum है, but it is mostly used to treat the tuberculosis. It is a drug reserved for tuberculosis. बाकी इन्फेक्शन में आपको इसका यूज नहीं करना है, ये सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस में यूज करते हैं, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में रेजिस्टेंस होता है जल्दी, तो अगर इसको भी रेजिस्टेंस हो गया ड्रग रहेगा यहाँ। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिशन ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इनहिबिशन ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जो बैक्टीरिया क्या करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करता है और डीएनए से आरएनए बनाता है। आरएनए बनाने के लिए एंजाइम लगता है, कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। Okay, RNA polymerase. So it inhibit the DNA dependent RNA polymerase. So there will be no formation of mRNA and there will be blockage of transcription. So this rifampicin inhibit the process of transcription. याद रखो इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म पूछते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनिबिशन ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज which leads to stoppage of expression of bacterial gene. It acts as a bactericidal drug. It is a bactericidal for extracellular as well as intracellular organism. Effective against the tubercular bacilli resistant to other drugs. It is also effective against the persisters. जो डॉर्मेंट फॉर्म होता है उसमें भी इफेक्टिव होता है। मैकेनिज्म याद रखो, रिफाम्पिसिन का डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज इनहिबिटर, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर। देन आइसोनियाजाइड क्या है? मायोकोलिक एसिड इनहिबिटर। ये इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, याद रखो, क्वेश्चन आता है इसको। एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। सो इट इज एब्सॉर्ब वेरी वेल फ्रॉम द जीआईटी। ये इसका एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। फूड विल डिक्रीज द एब्सॉर्प्शन। 80% of drug is plasma protein bound. Then it is metabolized in the liver to one metabolite known as a acetyl rifampin, disacetyl rifampin or desacetyl rifampin, which is the active metabolite. Okay, and this metabolite will also undergo enterohepatic circulation. मतलब liver में जाएगा, intestine में excrete होगा, फिर से liver में जाएगा, फिर से intestine में excrete होगा. That is enterohepatic circulation. It is a potent microsomal एंजाइम इंड्यूसर, CYP P450 इंड्यूसर। तो अगर दूसरा ड्रग इसके साथ में देंगे तो उसका मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जाएगा। सो ये आप फिर से रिवाइज करता हूँ, रिफाम्पिसिन और रिफाम्पिन और रिफाम्पिसिन। इट इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ रिफामाइसिन बी। इट इज एक्टिव अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, other staphylococcus bacteria and has a wide spectrum like macrolide antibiotics and lincomycin. It inhibits the DNA dependent RNA polymerase which prevent the bacterial gene expression. मतलब ये mRNA को बनने नहीं देगा। Okay, it inhibits the transcription process. Inhibition of DNA dependent RNA polymerase. RNA polymerase किसके लिए लगता है? RNA बनाने के लिए लगता है। We are seeing in the biochemistry. So for the transcription process you need this RNA polymerase. So it inhibits the DNA dependent RNA polymerase which leads to stoppage of expression of bacterial gene. So bacteria, this drug is bactericidal, effective against bacteria intracellular bacilli as well as extracellular bacilli which are resistant to other drugs and also effective in the persistent form. मतलब डॉर्मेंट बैक्टीरिया के ऊपर भी इफेक्टिव है। एडीएम में एब्सॉर्प्शन होता है, अच्छा होता है जीआईटी से। फूड विल डिक्रीज द एब्सॉर्प्शन। 80% drug after absorption is bound to plasma protein. It is metabolized in the liver to one active metabolite known as a desacetyl rifampin. Desacetyl rifampin, which is active metabolite, which will undergo enterohepatic circulation. It is a potent microsomal enzyme inducer. Adverse reaction क्या है? Skin rash, diarrhea, ataxia, dizziness, jaundice, leukopenia, thrombocytopenia. Okay, acute hepatic and renal failure. तो ये दो याद रखो, hepatic and renal failure. Then allergic reaction,
including shock and flu-like symptoms or syndrome. One main important adverse effect, it can color the urine, feces, saliva and sweat, sputum, tears. जो आपका यूरिन है, आपका जो टट्टी है, यूरिन, आपका टट्टी, आपका सलाइवा, स्पुटम, टीयर्स, स्वेट जो है उसको ऑरेंज कलर का बनाएगा. सो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ऑरेंज कलरेशन ऑफ यूरिन इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ड्रग. तो आइसोनियाजाइड उसमें टिक करने का, सॉरी आइसोनियाज नहीं, उसमें रिफाम्पिसिन क्लिक करने का. रिफाम्पिसिन कैन कलर योर बॉडी फ्लूइड्स लाइक यूरिन, feces, saliva, sputum, tears, orange colored. So orange colored urine is an adverse effect of rifampicin. Not only urine, orange colored urine or orange colored feces. Okay, टट्टी जो है आपकी orange color की होगी. Then saliva जो है orange color का बनेगा. Sputum, tears, sweat. This is the main adverse effect. याद रखो, उसको hepatotoxicity भी है, renal failure भी है, acute hepatic and renal failure. And orange red coloration of body fluids. Uses क्या है इसके uses? It is a tuberculosis. Uses tuberculosis. It should be resort drug for TB. It is also used in it can be used in Tuberculosis, leprosy, serious staphylococcal septicemia, then Legionnaires disease, prophylaxis of meningococcal infection with H. influenza. Most effective and fast acting drug in the leprosy. These are the लेप्रोसी में यूज करते हैं उसको और ट्यूबरकुलोसिस में यूज करते हैं. बाकी इसमें भी यूज कर सकते हैं लेकिन उसका यूज रेस्ट्रिक्टेड है ये दोनों के लिए. उसके बाद में आता है रिफापेंटिन. नेक्स्ट वन इज रिफापेंटिन एंड रिफाब्यूटिन. वो दोनों भी रिफाम्पिसिन का ही डेरिवेटिव है. रिफाम्पिसिन की डेरिवेटिव. रिफापेंटिन इज सेमी-सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ similar to rifampicin, long acting and converted into active metabolite known as a 25 डेसएसिटिल रिफापेंटिन. इसका एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है 25 डेसएसिटिल रिफापेंटिन. रिफापेंटिन, रिफाब्यूटिन एंड रिफाम्पिसिन ये तीनों ही एक ही कैटेगरी ड्रग है. स्ट्रेप्टोमाइसिन, नेक्स्ट ड्रग इज स्ट्रेप्टोमाइसिन. वी ऑलरेडी डिस्कस दिस ड्रग इन द aminoglycoside. It is not absorbed orally and must be given by injectable route, which is a painful. It has a bactericidal activity to the rapidly multiplying and neutral pH in the wall of tubercular cavities. It does not penetrate into macrophages and or caseous material. तो जहाँ पे लेशंस में caseous material fibrosis हो गया है वहाँ पे नहीं जाएगा. So it is only effective in the extracellular mycobacterial infection. It is a less potent and more toxic than isoniazide. CH penetration is less. Non-hepatotoxic anti-tubercular drug. देखो आइसोनियाजाइड को भी हिपेटोटॉक्सिटी है, आपका रिफाम्पिसिन जो है उसको भी हिपेटोटॉक्सिटी है, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? नॉन हिपेटोटॉक्सिक. इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट द एक्स्ट्रा सेलुलर बैसिलाई. ये होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन. नेक्स्ट ड्रग इज अ पायरेजिनामाइड. ओके, chemically it is related to thiocyanidazole and nicotinamide. Effective only against in the tuberculosis of human type, resistant to streptomycin and isoniazid. Human TB में ही effective है only. Ineffective against the bovine and atypical forms of tubercular bacilli. It is used in the combination with the streptomycin and isoniazid to exert a potent sterilizing effect on the tubercular lesion. Tuberculocidal है. Intracellular tuberculocidal माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर. देखो दो ड्रग है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट करने वाले. एक तो होता है आइसोनियाजाइड, INH आइसोनियाजाइड, और दूसरा कौन सा है? पायरेजिनामाइड आइसोनियाजाइड. बोथ आर द माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर. याद रखो. अगेन इट इज अ प्रोड्रग एंड कन्वर्टेड इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट नोन एज अ पायरेजिनोइक एसिड. इज अ प्रोड्रग converted into active metabolite known as a pyrazinoic acid, which inhibit the synthesis of mycolic acid. Now this drug is metabolized by deamination in the liver. Deamination process in the liver. Adverse drug reaction क्या है? Hepatitis, metallic taste, sulfurous eruptions, arthralgia, anorexia, nausea, vomiting, skin rashes, jaundice, photosensitivity, discoloration of exposed part, hepatitis, increased serum uric acid level. It is contraindicated in case of liver diseases. उसके रिलेटेड एक नया ड्रग है, उसका ही डेरिवेटिव मॉर्फेजिनामाइड.
morphazinamide. It is a more potent than parent pyrazinamide. Pyrazinamide का ही डेरिवेटिव है morphazinamide. उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव मोर पोटेंट है. तो याद रखो मायोकोलिनिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर लाइक योर isoniazid. Now next drug is ethambutol. Ethambutol. Okay, it is a dextroisomer of 2,2-ethylene diamine dibutanol. तो याद रखो it is a dextroisomer of 2,2-ethylene diamine dibutanol. Ethambutol. Leucoisomer is inactive against the TB and has an equal toxic effect. There is a two isomers of this ethambutol. So याद रखो 22-ethylene diamine dibutanol ethambutol. So LEO isomer जो है वो इफेक्टिव नहीं होता है. डेक्स्ट्रो आइसोमर जो है वो इफेक्टिव होता है इन द टीबी. ओके, बट LEO आइसोमर को टॉक्सिटी उतना ही है जितना डेक्स्ट्रो का है. Orally effective against the mycobacteria which are resistant to isoniazid, streptomycin and ethambutol. तो ethambutol, streptomycin, isoniazid को अगर कोई रेजिस्टेंस है तो उसमें यूज करो. रेजिस्टेंस टू दिस ड्रग इज नॉट रिपोर्टेड. ethambutol को प्राइमरी रेजिस्टेंस नहीं डेवलप हुआ है एंड दैट्स व्हाई इट इज अ सेकंड लाइन ड्रग. ये क्या है? सेकंड लाइन ड्रग है. माओ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल and arabinosyl transferase interfere with the myocholic acid incorporation in the cell wall, acts against the rapidly multiplying bacteria in the wall cavities. तो ये भी सेल वॉल को इनहिबिट करता है. ethambutol, isoniazid, then okay, then ये pyrazinamide and then ethambutol, ये सबको mycolic acid को ही इनहिबिट करते हैं. याद रखो. नाउ एडवर्स रिएक्शन, मेन एडवर्स रिएक्शन क्या है? रेट्रोबल्बार ऑप्टिक न्यूराइटिस. तो ऑप्टिकल नर्व जो है उसको डैमेज करेगा. रेट्रोबल्बुलर ऑप्टिक न्यूराइटिस ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज. सिम्टम्स इंक्लूड्स बर्निंग, blurring of vision, dizziness, decrease in the visual acuity, concentration of the visual field, concentration in the visual field, color discrimination, मतलब रेड कलर एंड ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा वो बंदा. Central scotoma should be avoided in the children below 8 years. It causes peripheral neuropathy also, along with the nausea, vomiting, diarrhea. The next drug is the thiazolone. So it is a thiosemi-carbazole derivative used in the low dose. Act as a adjuvant drug to the isoniazid. Act as a companion to the isoniazid. Adverse reaction क्या है? Stevenson-Johnson syndrome, drug rash, then fewer toxic effects include granulocytopenia, agranulocytosis, kidney and liver damage. Should not be used in the HIV patient due to severe skin reaction. HIV patient में इसको use नहीं करना. Then next drug is ethionamide. Ethionamide. It is effective against the tubercular bacilli resistant to other drugs. It has a broad effective in the infection due to atypical mycobacteria. Typical mycobacteria मतलब mycobacterium tuberculosis. Atypical मतलब बाकी सब. Effective against intracellular as well as extracellular organism. ये बोर्ड में क्यों लिखा है कि क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि one of the following drug is not effective in the intracellular as well as extracellular mycobacterial bacilli. क्वेश्चन आता है तो इंट्रासेलुलर एक्सट्रासेलुलर. एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, माइल्ड रिएक्शंस लाइक स्किन रैश, एलोपेसिया मतलब लॉस ऑफ हेयर्स. सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन लाइक एनाफिलैक्टिक शॉक, may develop hepatitis, gynecomastia, menorrhagia, hypoglycemic episodes and pellagra-like symptoms. These are the adverse effects. Adverse effect भी आपको याद रखना है. Tuberculosis is the one of the most favorite chapters from which question they used to ask. Next drug is a cycloserine. It is a tuberculostatic drug. ये क्या है? Static है, साइडल नहीं है. It acts by inhibiting the synthesis of bacterial cell wall. It is a chemical analog of D-alanine. जो D-alanine होता है उसके जैसे ही उसका स्ट्रक्चर होता है. तो ये स्ट्रक्चर, so it acts by inhibiting the cell wall synthesis. It is an analog of D-alanine and it is effective against the isoniazid resistant bacilli. Adverse reaction क्या है? Its use is limited because of its toxicity. इसको ज़्यादा यूज नहीं करते, टॉक्सिटी बहुत ज़्यादा है. Like neurological toxicity है इसको. Muscular weakness, tremors, increased reflexes, ankle clonus, then ataxia, slurring of speech, seizures, psychotic episodes like nervousness, insomnia, anxiety, psychosis, loss of judgment,
loss in memory, lapses in memory, confusion, okay, delusion, hallucination, suicidal tendency, उसकी वजह से उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते. Cycloserine. Now next one is the fluoroquinones and macrolides. Ciprofloxacin, जो ciprofloxacin, ofloxacin, lamivudine, drug जो है moxifloxacin, sparfloxacin, they are also effective in the mycobacterial infection. Moxifloxacin is a bactericidal, but it is a hepatotoxic. Azithromycin, clarithromycin can be used. Yeah, they are effective against the acid fast bacilli. डॉट्स थेरेपी. इसमें क्या होता है कि ये जो पेशेंट जो है, एक तो ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, तो पेशेंट ज़्यादा ड्रग को लेता नहीं है. देयर इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग थेरेपी. जो पेशेंट जो है वो जैसे प्रेस्क्राइब किया है वैसे लेता नहीं है वो, और उसकी वजह से क्या होता है, नॉन कंप्लायंस ज़्यादा होता है ड्रग को, और एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा है, उसके बाद में रेजिस्टेंस होता है. सो उसके बाद में फिर से लेना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए. उन्होंने एक शॉर्ट कोर्स तैयार किया है, डॉट्स, दैट इज अ डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट कोर्स. हो गए डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डॉट्स. आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, आपके इसमें टीवी में आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि राहुल द्रविड़ जो होता है क्रिकेटर, राहुल द्रविड़ जो है वो इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं टीवी का, डॉट्स का. डॉट्स मतलब क्या, डायरेक्टली ऑब्जर्व स्टेटमेंट शॉर्ट कोर्स. तो एक शॉर्ट स्पैन के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए ये ड्रग का कोर्स होता है टीबी के पेशेंट के लिए, जो सुपरविजन के अंदर ही डायरेक्टली वहीं पे ही ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर के सामने ही ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंदर ही आपको शॉर्ट टाइम के लिए ये कोर्स करना है ताकि आपका टीबी क्लियर हो सके. डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसका लॉन्ग फॉर्म है. Instead of supplying the drug to a patient for self-administration at home, patient is admitted under the supervision of doctor and DOTS regimen, okay, is given. Now DOTS regimen क्यों देते हैं? To ensure the high rate of treatment completion. क्या होता है कि पेशेंट वैसे ही परेशान हो जाता है ट्रीटमेंट से, वो लेता नहीं है, तो उसमें रिलैप्स हो जाता है, फिर रेजिस्टेंस आता है. तो इसके लिए डॉट्स थेरेपी होता है कि एडमिट करो उसको और सामने ही उसको ट्रीटमेंट दे दो ताकि वो पूरा उसका इरेडिएशन हो जाए. इंश्योर द हाई रेट ऑफ ट्रीटमेंट कंप्लायंस, डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स ऑफ डिसीज. ये डॉट्स की एडवांटेज है. दैट्स व्हाई डॉट्स थेरेपी. डॉट्स इज अ मैंडेटरी ड्रग व्हेन प्रेस्क्राइब्ड लेस ऑफन देन डेली. डॉट्स क्या है, ये कंपल्सरी लेना पड़ता है उसके सामने आपको, वो जब तक आप लेते नहीं तब तक वो जाता ही नहीं वहां से. ड्रग्स आर प्रेस्क्राइब्ड टू बी टेकन डेली ऑन रेजिमेंट. ठीक है, ये कंपल्सरी लेना पड़ता है और ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है डॉट्स तक. अदर फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ये तो हो गया आपका एक नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है ट्यूबरकुलोसिस. तो अदर फॉर्म क्या होते हैं, दूसरे क्या है? सो अदर फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, फर्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस. अगर ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी का इन्फेक्शन है, वो आपके पल्मोनरी में गया है, उसके बाद में वो इन्फेक्शन आपके ब्रेन में गया, दैट इज नोन एज अ ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस. ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस. तो उसमें फिर आपको पूरा सीजर्स आएगा, आपको पैरालिसिस भी हो सकता है. ठीक है, आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे. सो आई हैव सीन दिस पेशेंट ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, मैंने ये देखा है उसको. तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस इज ट्रीटेड विद द, ठीक है, आइसोनियाजाइड, ट्रिप्टोमाइसिन, देन रिफाम्पिसिन एंड pyrazinamide. Z for pyrazinamide, R for rifampicin, S for streptomycin and H for isoniazid. तो HSRZ. ठीक है. Tuberculosis meningitis is treated with this drug. Pyridoxine is supplement given क्योंकि isoniazid क्या करता है, रिपेरल न्यूरोपैथी करता है, तो उसको न करने के लिए pyridoxine का सप्लीमेंट देना जरूरी है. To prevent the toxicity of isoniazid, steroids can be used in terminally ill patient. ठीक है. तो नॉर्मली टीबी के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड यूज नहीं करना है. तो नॉर्मली इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस स्टेरॉइडल ड्रग लाइक डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, दे आर नॉट यूज्ड. नॉर्मली जो टीबी का ट्रीटमेंट होता है उसमें स्टेरॉइडल ड्रग यूज नहीं करना है, बिकॉज these steroids they will suppress your immunity, and they will prevent the they will suppress your immunity and they will सप्रेस करता है इम्यूनिटी को. उसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ने का चांस हो. तो स्टेरॉइड्स नॉर्मली टीबी में यूज नहीं करना है. बट इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस और टर्मिनली इल पेशेंट
आपको मालूम है कि ये पेशेंट मरने वाला है तो अभी इसकी कोई ऑप्शन ही नहीं, उसमें स्टेरॉइड यूज कर सकते हो। मतलब डॉक्टर आप नहीं, आपको परमिशन नहीं है, जो फिजिशियन होता है उसको परमिशन होता है। ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडेंटिस, अगर ट्यूबरकुलोसिस जो है टीबी का इन्फेक्शन आपके लिम्फ ग्लैंड में हो गया तो उसको बोलेंगे ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडेंटिस। नॉर्मली टीबी का इन्फेक्शन होता है आपके लंग्स में, ब्रोंकियस में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लेकिन कभी कभी क्या होता है ज्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से ट्यूबर ट्यूबर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोस वो ब्रेन में भी जाता है, उसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस। इसमें ये ड्रग्स इफेक्टिव है, कौन से ये आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, पायरेजिनामाइड along with the pyridoxine to prevent the toxicity of isoniazid. Then steroids can be used in the terminally ill patient, जो मरने वाला है उसमें अगर कोई ऑप्शन ही नहीं तो। Then second form of tuberculosis, tuberculous lymphadentis, lymph gland का इन्फेक्शन। ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया अगर लिम्फ ग्लैंड में जाता है तो उसको ट्यूबरकुलस लिम्फेडेंटिस। सो इट इज कॉज्ड बाय एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, इट कॉजेज जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बोन्स, जॉइंट, स्किन, larynx and intestine. Now it is treated with the routine chemotherapy. Tuberculosis during pregnancy is treated with the isoniazid, pyrazinamide, rifampicin, ethambutol with the pyridoxine for 9 months. अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन को टीबी होगा है तो उसमें ये ट्रीटमेंट है। केमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मतलब प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हो, होने के बाद में ट्रीटमेंट देना है, अगर न हो इसलिए क्या कर सकते हो, केमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो वैक्सीन लेना है। कौन सा लेना है वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, बैक्टीरिया कालमिटी क्वारिन, बैक्टीरिया कालमिटी क्वारिन, बीसीजी वैक्सीन। सो इट इज अ ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, so it will give you a protection against tuberculosis. Vaccination has been shown useful in the clean negative school children. तो बचपन में बीसीजी का वैक्सीन देते हैं। इन कॉन्टैक्ट केस विद द एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस पर्सन लिविंग इन द एरिया, तो क्या करना है कि जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है वहाँ पे जो स्कूल कॉलेजेस है बच्चे है उसमें बीसीजी का वैक्सीन देना है। वैसे तो आजकल सबको देते हैं बीसीजी वैक्सीन। एचआईवी पेशेंट में क्या है, एचआईवी पेशेंट इज मोर प्रोन टू दिस टीबी इन्फेक्शन। एचआईवी पेशेंट में क्या है, प्रोग्रेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, दैट इज CD4 सेल। ये CD4 सेल का काउंट कम होता है एचआईवी पेशेंट में, तो इम्यूनिटी कम हो जाता है। एंड इम्पेयर्ड बी लिम्फोसाइट्स एज वेल एज माइक्रोफेज, इम्यूनिटी कम होता है एड्स पेशेंट में, क्योंकि उसमें CD4 सेल जो है, CD4 मतलब हेल्पर टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स which are immunocell, then B lymphocytes they are also immunocell as well as macrophages, macrophages भी उसमें कम होता है, उसके कारण क्या है, उसका इम्यूनिटी कम होता है and they are liable to undergo reactivation of old healed tuberculosis। मतलब अगर पहले किसी को टीबी होके गया है, मतलब टीबी हुआ है, उसका ट्रीटमेंट होके क्लियर भी हो चुका है, लेकिन अगर बाद में उसको HIV एड्स हो गया तो वो टीबी का इन्फेक्शन फिर से रिलैप्स हो सकते हैं उसमें। एंड जो भी एड्स के पेशेंट होते हैं एड्स के, उनको टीबी होता ही होता है 100%। और एड्स के पेशेंट जो है वो एड्स से नहीं मरता, जिसको एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ है वो एड्स की वजह से नहीं मरता, एड्स के वायरस की वजह से नहीं मरता, वो मरता है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। तो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ही एड्स एड्स के पेशेंट की डेथ होती है। तो एड्स का पेशेंट जो है वो एड्स की वजह से नहीं मरता है, वो मरता है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी कम होता है, उसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, और ट्यूबरकुलोसिस होने के बाद में फिर वो मरता है। तो एड्स का पेशेंट एड्स की वजह से नहीं मरता, वो मरता है टीबी की वजह से। Okay. Again, you can see the classification, alternative classification of drug used in the tuberculosis. So, drug used in the tuberculosis, so first class group 1, they are known as the first line oral drugs. First line oral drug. इसमें isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol. Second है so injectable drugs. इसमें streptomycin, kanamycin, amikacin, capreomycin. ये अलग सा क्लासिफिकेशन। ग्रुप 3 में आएगा आपका, क्लास 3 में आएगा फ्लोरोक्विनोन्स, जिसमें सब लॉक्सिन्स आएंगे। ग्रुप 4 में आएगा सेकंड लाइन ओरल ड्रग्स, ये सब फर्स्ट लाइन ड्रग है। ग्रुप 4 में सेकंड लाइन ओरल ड्रग्स, इसमें इथियोनामाइड, प्रोइथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, थायरोइडाजोन, पैराअमाइनो सैलिसिलिक एसिड। ग्रुप 5 में आता है अनक्लियर इफिकेसी ड्रग, मतलब इनका इनका जो एक्टिविटी है वो क्लियर नहीं है अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसमें आता है थायोएस्ट्राजोन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लोफेजिनामाइड, लिनाजोलिन। आउट ऑफ दैट यहाँ पे एक याद रखो, क्लोफेजिमिन है, जो क्लोफेजिमिन है इट इज अ डाई, इट इज अ कलरंट। क्लोफेजिमिन इज अ डाई, इट इज अ कलरंट।
and it also causes a brown or black coloration to your skin and your pieces. आपके स्किन को ब्राउन ब्लैक कलरेशन करेगा क्लोफेजिमिन. ओके, इट इज मोस्टली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी. तो उसको उसके बारे में अपन नेक्स्ट. ये हो गए ड्रग यूज इन ट्यूबरकुलोसिस. आया समझ में आपको? नाउ एंटी लेप्रोटिक ड्रग, ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी. लेप्रोटिक ड्रग, एंटी लेप्रोटिक ड्रग, ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी. तो लेप्रोसी इज आल्सो कॉज्ड बाय एसिड फास्ट बैक्टीरिया. ओके, माइकोबैक्टीरियम लेप्री. उसमें कौन सा ड्रग यूज करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यूज इन द लेप्रोसी. सो उसमें देर आर 4 कैटेगरी ऑफ ड्रग यूज इन द लेप्रोसी. फर्स्ट वन इज सल्फोन. सल्फोन, सल्फोन में आता है आपको, सल्फोन में आपका एग्जांपल होता है डेप्सोन, डाइफिनाइल, डायअमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन. सो दैट इज नोन एज डेप्सोन. डेप्सोन इज अ, इट ड्रग इज लुक लाइक आपका सल्फोनामाइड्स जो होता है उसके जैसे ही होता है, डायअमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन. सो सल्फोन मीन्स डेप्सोन. देन फेनाजिन डेरिवेटिव, फेनाजिन डेरिवेटिव उसमें आता है क्लोफेजिमाइन. क्लोफेजिमाइन, क्लोफेजिमाइन इज अ काइंड ऑफ डाई, कलरेंट है ये. फेनाजिन डेरिवेटिव, फेनाजिन डाई. देन एंटी, ओके, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज्ड इन द लेप्रोसी. उसमें रिपम्पिन आता है और इथियोनामाइड आता है. अदर एंटीबायोटिक यूज्ड इन द लेप्रोसी उसमें, ओके, मोक्सीफ्लोक्सासिन, मिनोसाइक्लिन. मिनोसाइक्लिन क्या है? मिनोसाइक्लिन इज अ टेट्रासाइक्लिन डेरिवेटिव. क्लैरिथ्रोमाइसिन इज अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक. और ये जो मोक्सीफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सिन है, वो क्या है? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक. तो ये क्या है कि ये समरी ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग अगेन. ठीक है, समरी ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग. आइसोनियाजाइड क्या करेगा? मैकेनिज्म क्या है? इट इनहिबिट द माइकोलिक एसिडेज. इट इज अ प्रोड्रग एंड रिक्वायर्स द कन्वर्जन बाय कैटालेज एंजाइम इन द बॉडी. ये बोला है मैंने. हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस. उसको रेजिस्टेंस क्यों होता है? डिलीशन ऑफ सम जीन्स इन द बैक्टीरिया विच. हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या करता है? ऐसा जीन डेवलप करता है कि जो कैटालेज परऑक्सीडेज एंजाइम है उसको सेंसिटिव नहीं बनाता. साइड इफेक्ट क्या है? हेपेटाइटिस उसका साइड इफेक्ट है. पेरिफेरल न्यूरोपैथी व्हिच कैन बी ट्रीटेड बाय विटामिन B6. एनीमिया जो है उसमें भी विटामिन B6 यूज कर सकते हैं. सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमाटस रिएक्शन. उसके बाद ऑप्टिक न्यूरोपैथी, हेपेटाइटिस, ये सब एडवर्स रिएक्शन है उसके. पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हेपेटाइटिस, सीनेस टॉक्सिटी. नेक्स्ट ड्रग इज रिपम्पिन. रिपम्पिन क्या करेगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है. एडवर्स इफेक्ट क्या है? हेपेटाइटिस, it is an enzyme inductor and it causes orange coloration of your body fluids. ठीक है. इथाम्बुटोल क्या करेगा? It inhibit the synthesis of cell wall by binding to arabinogalactan. DLR, it is analog of DLR, dose dependent retrobulbar neuritis. ये भी पेरिफेरल न्यूराइटिस करेगा, ऑप्टिक न्यूरो को डैमेज करेगा. पेशेंट इज नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर. पाराजिनामाइड जो है उसका मैकेनिज्म क्लियर नहीं है. ओके, हेपेटाइटिस करेगा, यूरेसिमिया करेगा. स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन करेगा बाय बाइंडिंग विद 30 साइक्लोन. इट कैन कॉज डीपनेस, मतलब एट क्रेनियल नर्व डैमेज, वेस्टिबुलर डिसफंक्शन एंड नेफ्रोटॉक्सिटी. Chemotherapy of leprosy. Now leprosy is nothing but it is also caused by Mycobacterium leprae. Leprosy is also known as Hansen's disease. ये याद रखो, उसको क्वेश्चन आ चुका है. It is caused by leprosy is caused by Mycobacterium leprosy. Mycobacterium leprae, which produces lesion on skin. Lesion मतलब क्या? जख्म करता है स्किन के ऊपर, जख्म. एंड पेरिफेरल नर्व्स. तो जो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं आपके एक्सट्रीमिटीज के नर्व, उसके ऊपर भी डैमेज करते हैं. इसको एक बोलते हैं हंसन्स डिसीज. इसको क्या बोलते हैं? हंसन डिसीज. लेप्रोसी इज नोन एज हंसन डिसीज. इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री. इट प्रोड्यूसेस लेशंस ऑन स्किन एंड पेरिफेरल नर्व्स. ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन द मैक्रोफेजेस एंड श्वान सेल्स. इट इज आल्सो नोन एज हंसन डिसीज. मराठी में बोलते हैं कुष्ठ रोग. हे बाबा 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 आमटे, बाबा आमटेचं जे काम आहे ते सगळं कुष्ठरोगावरतीच आहे. सो दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय Hansen's in 1873, known as a Hansen's disease. Okay, it is clinically there are 4 types. So it is caused by Mycobacterium leprae and it produces the lesion on skin and peripheral nerve. तो ये peripheral nerve को और skin को जख्म करता है. It will cause wound on the peripheral nerve and skin. It was discovered by Hansen in the 1873. That's why it is known as a Hansen's disease.
क्वेश्चन आ चुका है, लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिसीज, और इसको मराठी में कुष्ठ रोग बोलते हैं. बाबा आमटेचं जे काम आहे ते सगळं कुष्ठरोगावरती आहे. There are 4 types of this leprosy. First one is known as a lepromatous leprosy. First one is known as a lepromatous lepromatous leprosy. Second one is a tuberculoid leprosy. Third one is a intermediate leprosy, and fourth one is a dimorphic or borderline. These are the 4 types. उसके टाइप भी याद रखो. लेप्रोमेटस लेप्रोसी, सॉरी, लेप्रोमेटस लेप्रोसी टाइप्स याद रखो. लेप्रोमेटस लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, इंटरमीडिएट लेप्रोसी एंड बॉर्डरलाइन लेप्रोसी. ये 4 टाइप्स है उसके, याद रखो. लेप्रोमेटस लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, इंटरमीडिएट लेप्रोसी and borderline leprosy. So in lepromatous leprosy, lepromin test is negative. In tuberculoid leprosy, nerves are affected and strong positive lepromin test. Lepromatous leprosy में lepromin test is negative. Okay, lepromin test is negative in case of lepromatous leprosy. In case of your tuberculoid leprosy, nerves are affected and strong positive lepromin test. Okay, in case of tubercular leprosy, nerves are also affected and strong lepromin test. In borderline leprosy, immunity is low and later turns into lepromatous leprosy. तो borderline leprosy जो है उसमें immunity low होता है और बाद में उसका conversion होता है lepromatous leprosy में. Now drug used in the treatment of leprosy. So classification बहुत simple है, 2-3 टाइप के ड्रग यूज करते हैं. First one is known as a सल्फोन्स. सल्फोन्स में आता है डेप्सोन, डायमोनो डाइपिनाइल. देन उसमें आता है एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, रिफाम्पिसिन, क्लोफेसिनामाइन, इथियोनामाइड एंड प्रोइथेनामाइड. न्यूअर ड्रग्स में आता है ओफ्लोक्सिन, मिनोसाइक्लिन एंड क्लेवेथ्रोमाइसिन. तो बाकी के मोस्ट ऑफ द ड्रग के बारे में अपन ने ऑलरेडी देखा है, तो अपन तो सिर्फ डेप्सोन, सल्फोन और क्लोफेसिनामाइन के बारे में देखेंगे, क्योंकि सब ऑलरेडी हो चुका है. फर्स्ट सल्फोन्स. So these are nothing but the derivative of di4,4-diamonodiphenyl sulfone. Mechanism क्या है? Similar to sulfonamides. So it blocks the synthesis of folic acid in the Mycobacterium leprae, क्योंकि it has a structural similarity with the PABA. ये diamonodiphenyl sulfone जो है उसमें ये ब्रेक होने के बाद 2 मॉलिक्यूल्स मिलता है सल्फोनामाइड्स का. So dapsone is nothing but it block the de novo synthesis of folic acid in the Mycobacterium leprae. Dapsone is blocked by PABA. तो अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का होगा पावा तो डेप्सोन का एक्शन नहीं मिलेगा. They are a bacteriostatic. ADME, absorption, distribution, metabolism, elimination. Completely absorbed from the GIT, metabolized by the liver, and it is metabolized by using second reaction known as a glucoionic acid conjugation. Excreted large quantity in the bile, milk. Sulfones get concentrated in the more in the leprosy infected skin than normal skin. जहाँ पे लेप्रोसी इन्फेक्टेड स्किन है, मतलब जहाँ पे माइकोबैक्टीरियम लेप्री ने लेशंस किया है, जख्म किया है, वहाँ पे ज़्यादा जाएगा. एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है देखो, सिमिलर टू सल्फोनामाइड्स, कॉमनली एनोरेक्सिया, नॉशिया, वोमिटिंग, एलर्जिक रिएक्शन, स्किन सेंसिटाइजेशन, स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम, ड्रग फीवर, हेपेटाइटिस, साइकोसिस. जो आपका सल्फोनामाइड का एडवर्स इफेक्ट वही है. यूजेस क्या है? इट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी. इट इज अ बैकअप ड्रग. Doses needed are very small. Dapsone still remain a drug of choice among the various sulfones. Other uses are dermatitis and dermatitis hyperitiformis. तो Dapsone. बाद में आता है clofazimine. So it is a red pulper phenazine dye. Red pulper phenazine dye. It is a well absorbed orally. Principally, it is retained in the tissue of reticuloendothelial system, concentrated in the macrophages. It has a bactericidal activity. It acts by inhibiting the mycobacterial DNA synthesis. तो जो mycobacterium leprae है उसका जो DNA synthesis है उसको inhibit करता है. It acts by inhibiting the mycobacterial DNA synthesis. It is also anti-inflammatory. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा. Tell me the example of another antibiotic which is also having anti-inflammatory activity. बोलो. ये हो चुका है, मैंने बोला है ऑलरेडी. When we were studying macrolide antibiotic जो देख रहे थे उसमें बोला था मैंने एजिथ्रोमाइसिन, टॉक्सिथ्रोमाइसिन. इसमें क्या है, मैक्रोलाइड्स जो है उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी होता है और ये क्लोफेज़ामाइन को भी एंटी इंफ्लेमेटरी. सो इट कैन कॉजेस क्रैम्पी पेन डायरिया, दैट इज अ एडवर्स इफेक्ट. क्रैम्पी पेन डायरिया इज द एडवर्स इफेक्ट. इट मे impart reddish black hue on skin of the patient.
तो ये रेडिश ब्लैक ब्लैक कलर का स्किन का ब्लैक कलर करेगा स्किन को जहाँ पे है वहाँ पे। देन एक लेप्रा रिएक्शन exacerbations which occurs during the course of leprosy is called as leper reaction। तो एक्सर्बेशन मतलब क्या है? जैसे लेप्रोसी का इन्फेक्शन हो गया, लेप्रोमेटस लेप्रा की इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद में स्किन के ऊपर जो रिएक्शंस होते हैं आपके, उसको बोलते हैं exacerbations which occurs during the course of leprosy infection। Type 1 lepra reaction, it is because of the delayed hypersensitivity reaction, increased erythema swelling on existing lesion and tends to peripheral nerve। Type 2 lepra reaction is characterized by erythema nodosum leprosum, it is because of the amino complex depression to a basic lesion। तो ये टाइप दो टाइप का लेपर रिएक्शन होता है। टाइप फर्स्ट लेपर रिएक्शन इज हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 इज बिकॉज ऑफ द जो लेशन होता है उसको नोडोसम बोलते हैं, इरेथ्रेमा नोडोसम। So this was regarding today's session.